Hello everyone, my name is Sabia Fatima, working as an assistant professor in Access Colleges, Kanpur. In this lecture, we are going to introduce R programming language. In this lecture, we will discuss what is R and RStudio. In RStudio, how to set the working directory and how to create an R file and how to save it into RStudio. Then we will discuss how to execute the code in RStudio and how to add the comments into R code and how to clear the console into the RStudio. So let us see what is R. R is an open source programming language and it is an statistical software and data analysis tool. It comes with the command line interface and it is also runs on the platforms like Windows, Linux and Mac OS. Now let us see what is RStudio. So RStudio is an integrated development environment for R. Integrated development environment is a graphical user interface where we can execute our code, we can write our code, we can execute our code and we can see the result into the same window and we can see the variables that are generated by our code. So RStudio is available in open source and commercial editions and also available for desktop and server versions. So in this lecture, we will focus on open source and desktop version of RStudio. जब भी हम RStudio इंस्टॉल करते हैं तो हम ओपन करते हैं RStudio तो फर्स्ट विंडो हमारी कुछ इस तरह की दिखती है. Here we have 4 parts. In the first part we write our code. जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट हमारे कंसोल विंडो में शो होती है, द सेकेंड विंडो ऑफ RStudio. एंड इन द थर्ड विंडो there are 2 tabs, environment and history tab. So environment tab displays all the variables that are generated by our source code and the history tab displays all the commands that are used till now from the beginning of RStudio. And in the fourth window, here some tabs are displaying files, plots, packages, help. In the file tabs displays all the files that are available in default workspace in R, and plots displays plots that are generated by our source code. And the packages displays all the package that are installed in RStudio, and it also provide the user interface where we can install the new package. And the help tab displays the help from the R documentation. Now let us see how to set the working directory. वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है कि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एज ए वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देते हैं तो RStudio वो सारी फाइल्स जिसे हम सेव करते हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी में ही सेव होती है और RStudio उसी डायरेक्टरी से ही फाइल्स को रीड भी करता है. So there are 3 methods to set the working directory. In the first method, go to session menu, click on set working directory from the pop-up menu and यहाँ पर जाकर हम उस desired directory को select कर लेते हैं जिसे हम as a working directory set करना चाहते हैं RStudio के लिए. In the second method, we write this command set wd command into the console और इस कमांड के अंदर हम वो पाथ प्रोवाइड करते हैं, उस डायरेक्टरी का पाथ प्रोवाइड करते हैं जिस डायरेक्टरी को हमें एज ए वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना होता है. नेक्स्ट मेथड में हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे. फाइल्स के अंदर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इस 3 डॉट्स से क्लिक करने पे हमें ये विंडो मिलेगी. इस विंडो में हम उस डिज़ायर्ड डायरेक्टरी को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें एज ए वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है. तो यहाँ पर मैंने डेमो डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने ओपन पे क्लिक किया. ओपन करते ही यहाँ पे हमें डेमो डायरेक्टरी शो होने लगी, ओपन होने लगेगी. यहाँ पर ओपन होने के बाद जब हमने देख लिया कि हमारी डायरेक्टरी ओपन हो गई है, उसके बाद हम मोर पे जाएंगे.
मोर पे क्लिक करेंगे और एक पॉपअप मेन्यू शो होगा। इस पॉपअप मेन्यू से हम क्लिक करेंगे सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी पे। तो जो हमारी डेमो डायरेक्टरी जो ओपन हो रही है उस डायरेक्टरी को हम एज ए वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देंगे। नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट एन आर फाइल। तो आर फाइल को क्रिएट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाकर हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड न्यू फाइल से हम आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें नई स्क्रिप्ट फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड ये है कि हम फाइल मेन्यू के जस्ट बिलो एक आइकन शो हो रहा होगा प्लस आइकन, उस प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पॉपअप आएगा। उस पॉपअप मेन्यू पे हम आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और हमें न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन होकर इस पार्टीशन पे, इस पोर्शन पे हमें डिस्प्ले होने लगेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी फाइल हमने ओपन की है, जो स्क्रिप्ट फाइल अभी हमने ओपन की है उसका नाम डिफ़ॉल्ट नेम है अनटाइटल्ड 1। इस तरह से जितनी भी फाइल्स हमने ओपन कर ली, अगर वो सेव नहीं है ऑलरेडी तो सारी फाइल्स का नाम हो जाएगा अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी फाइल्स ओपन होती है डिफ़ॉल्ट नेम के साथ। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ आर स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ असाइन किए, a में 11 एंड b में a मल्टीप्लाई बाय 10। Now we have concatenated these two values and used the print function to print these values. Now let us see how to save an R file. तो हम जब फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे होंगे, सेव एंड सेव एज। तो जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने से हमारी जो फाइल है स्क्रिप्ट जो डिफ़ॉल्ट नेम था अनटाइटल्ड 1, तो उस अनटाइटल्ड 1 नेम से सेव हो जाएगी। बट जब हम सेव एज़ फंक्शन यूज़ करते हैं तो सेव एज़ पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी फाइल है वो उसको हम एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी। इस विंडो में मैंने अपनी फाइल को नाम दिया है डेमो और इसे सेव किया है .r एक्सटेंशन के साथ, यानी जो हमारा R कोड है वो .r एक्सटेंशन से सेव होता है। नाउ वी विल सी द एग्जीक्यूशन ऑफ एन R फाइल। तो एग्जीक्यूशन के लिए देयर आर 3 ऑप्शंस इनटू R स्टूडियो। फर्स्ट वन इज़ रन, सेकेंड वन इज़ सोर्स एंड द थर्ड वन इज़ सोर्स विद एको। तो रन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम अपने कोड को किसी इंडिविजुअल लाइन या पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कर्सर इस सेकेंड लाइन पे है। तो जब हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, इसके अलावा किसी भी लाइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं यूजिंग रन ऑप्शन, तो वी विल सेलेक्ट द मल्टीपल लाइंस एंड वी विल क्लिक ऑन रन। तो इस तरह से हमारी वो सेलेक्टेड लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सोर्स ऑप्शन कब यूज़ होता है? सोर्स ऑप्शन का यूज़ करके हमारी पूरी फाइल, होल फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड, बट कंसोल में हमें सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट डिस्प्ले होगा, कोई भी कमांड डिस्प्ले नहीं होगी। सोर्स विद एको से क्या होता है कि हमारी जो फाइल है, हमारा जो फाइल है वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूशन में रिज़ल्ट के साथ साथ हमें कमांड्स भी डिस्प्ले होंगी कंसोल में। तो यही डिफरेंस है सोर्स और सोर्स विद एको में, कि सोर्स में हमें कमांड्स डिस्प्ले नहीं होती हैं, सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले होता है। सोर्स विद एको में हमें कमांड्स भी डिस्प्ले होती है कि कौन कौन सी कमांड हमने एग्जीक्यूट की है और उसका रिज़ल्ट क्या है। और हम साथ ही देख सकते हैं कि जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एनवायरनमेंट टैब में 2 वेरिएबल मिल गए, 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए जिसमें वैल्यूज़ भी हम देख सकते हैं, 11 एंड 110 इज असाइंड। नाउ लेट अस सी हाउ व्हाई वी यूज़ द कमेंट्स इनटू आर कोड। सो कोड रीडेबिलिटी के लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अगर, तो हम कमेंट का यूज़ करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे आर प्रोग्राम में कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज़ हो रही है, कौन से ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, तो हम उन ऑपरेशंस या एल्गोरिथम्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कमेंट के साथ कि इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम
इस एल्गोरिथम के थ्रू स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हम कमेंट का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड को अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं तो उसको हम कमेंट कर देते हैं, तो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कमेंटेड लाइन हमारी कंसीडर नहीं की जाती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। और किसी पर्टिकुलर कोड को हमने कहीं से किसी भी सोर्स से लिया हुआ है, तो अगर हम उसे रेफरेंस देना चाहते हैं तो हम अपने कोड में उस ब्लॉक ऑफ कोड में कमेंट लगा करके उस सोर्स का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि ये कोड पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया गया है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश की का यूज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के आगे हम हैश की लगा देते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कमेंटेड हो जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा अनकमेंटेड लाइन्स हैं और ये कमेंटेड लाइन्स हैं, और कमेंटेड लाइन ग्रीन हो जाती है जब यहाँ पर हम हैश की का यूज़ कर लेते हैं, यानी ये लाइन अब एग्जीक्यूशन के लिए कंसीडरेबल नहीं है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक एरो की लिया है, इसके पहले हमने इक्वल साइन लिया हुआ था। तो आर स्टूडियो में 3 ऑपरेटर यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, विच इज़ लेफ्ट वर्ड एरो, राइट वर्ड एरो एंड इक्वल साइन। जबकि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग जानते हैं कि इक्वल साइन का ही यूज़ होता है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेफ्ट वर्ड एरो जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से सिंटैक्स होता है हमारा कि वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड होता है और एरो के बाद वैल्यू होती है जिसे हमें वेरिएबल में असाइन करना है। राइट वर्ड एरो की का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कुछ इस तरह से स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं कि जिस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू को असाइन करना है वो वैल्यू आती है लेफ़्ट साइड में, या वो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू को हमें वेरिएबल में असाइन करना होता है वो लेफ़्ट में आता है, और एरो की के बाद हमारा वेरिएबल नेम होता है जिसमें हमें उस वैल्यू को असाइन करना है। और इक्वल साइन हम वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने यूज़ किया था a = 3, तो 3 विल असाइन टू वेरिएबल a। तो इस तरह से हम आर स्टूडियो में आर प्रोग्रामिंग में 3 तरह से वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल लाइंस को किस तरह से कमेंट किया जा सकता है। सो देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट की एंड द सेकेंड मेथड इज़ मेन्यू। तो शॉर्ट की का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल लाइंस को हम कमेंट करना चाहते हैं तो हम जिन जिन लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+Shift+C प्रेस कर देंगे तो हमारी जितनी भी लाइन हमने सेलेक्ट की थी वो सारी कमेंटेड हो जाएंगी। सेकेंड मेथड है कि हम कोड मेन्यू में जाएंगे, कोड मेन्यू में जाकर हम क्लिक करेंगे कमेंट या अनकमेंट लाइंस पे, और इससे जो हमने लाइन सेलेक्ट की थी वो लाइंस कमेंटेड हो जाएंगी। नाउ वी विल सी हाउ टू क्लियर द कंसोल। अगर हमने सोर्स विद एको से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है तो हमारे हर एक लाइंस, हर एक कमांड्स हमें इसमें डिस्प्ले होंगी, साथ ही साथ रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा। तो जो हमारा कंसोल है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कंसोल को हम क्लियर कर दें तो क्लियर करने के लिए हम Ctrl+L की का यूज़ करेंगे जिससे हमारी ये कंसोल एम्प्टी हो जाएगी। बट यहाँ पे नोट करना ये है कि हमने कंसोल को क्लियर किया है, वी हैव नॉट डिलीटेड एनी वेरिएबल। यहाँ हम इन्वायरमेंट टैब में जाकर देख सकते हैं कि हमारे अभी भी वो वेरिएबल्स A एंड B डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी ये वेरिएबल्स डिलीट नहीं हुए हैं। तो कंसोल को क्लियर करने से कोई भी वेरिएबल डिलीट नहीं होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल्स डिलीट हो जाएं तो क्या करेंगे, हम rm फंक्शन का यूज़ करेंगे। rm फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को प्रोवाइड करेंगे जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हम वेरिएबल a को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे rm a। इससे हमारे इन्वायरमेंट टैब में जो वेरिएबल a है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट टैब पूरा एम्प्टी हो जाए, इस इन्वायरमेंट टैब के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ करेंगे rm list = ls फंक्शन।
तो इस कमांड का यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट टैब में जितने भी वेरिएबल्स ओपन हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। थर्ड मेथड ये है कि हम GUI का यूज़ कर सकते हैं। GUI कैसे कि ये जो इन्वायरमेंट टैब है इसमें हम देख सकते हैं ब्रश आइकन शो हो रहा है। तो ये ब्रश क्या करेगा, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी इन्वायरमेंट टैब के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ RStudio. In the next lecture we will discuss the variables and the data types in R. Till then, have a nice day.